Hey, hi everyone, welcome back to the channel She Life Engine, and I once again welcome you all to my channel. And thanks for 2k subscribers. I was never imagining that I will be one day achieving 2k subscribers target, and this has been the love that has been shared by you. And I am very much thankful to all of you that you have given us such a beautiful support to the channel. Soon I will be deleting all the videos from the channel as I have to do, as I am going to the academy, and around 3 to 4 days the joining letter will be coming on. This video I am going to share about my experience at the 5 FSB Guwahati. As you already know that I was recommended from the 5 Air Force Selection Board Guwahati, and it has been a very beautiful journey so far. Thereafter I proceeded towards my medical. I cleared the medical without any temporary rejection. Thereafter I got around 225 rank in the merit list, where my written marks was 390, my SSB marks was 455, around I think 445 or 455 marks I got from the SSB interview by the 5 Air Force Selection Board Guwahati. So journey has been so beautiful so far, and I am just enjoying my life, and you will also be enjoying, because it was also my struggle of around 2 to 2.5 years that I have achieved this position today. And at the same time, this video is going to be very much helpful for those who are preparing for the SSB interview and whose SSB interview is going to come, because in this video I will be sharing my whole experience. At the same time, I will be also telling you how did I approach the each and every task, and what was my mental approach by doing any task in the SSB interview. So as you know, my cleared the written examination in the September 2025, and after the written examination my SSB dates were date selection link was uploaded on the Join Indian Army website, and I selected the SSB date, and that was the 19th of January 2026, and my SSB center was Guwahati. So matlab it was a very beautiful and so exciting experience, because at that time I was having two options: either if I got recommended, that's so good; if I not get recommended, then I was going to merchant navy. That was my career, backup career, and I was well decided that if not in this attempt, then I am going to give the merchant navy examination, and I'm going to make a career in that, and thereafter coming back for the CDS and FCAT. But अब जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा था, मैं इंटरव्यू की तरफ जा रहा था, तो लाइक आपको वो एक जो दिल की धड़कन होती है वो भी बहुत तेज़ होती जा रही थी, क्योंकि ये वाला अटैम्प्ट कुछ ज़्यादा स्पेशल था. इसमें तैयारी बहुत अच्छी थी, फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी थी, कम्युनिकेशन इट वाज गुड फ्रॉम द स्टार्टिंग, एंड जीके एंड प्रैक्टिस इट वाज ऑल गुड दिस टाइम. एंड दिस टाइम आई वाज थिंकिंग डैट यार दिस की बार इनको रिकमेंड कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी बार मेरी सारी पर्सनैलिटी उस अप टू पार थी कि मैं एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता था एसएसबी इंटरव्यू में. एंड देर आफ्टर वट हैपन कि मैंने फ़्लाइट बुक कराई 5 FSB गुवाहाटी की, गुवाहाटी क्या बोलते हैं इसकी, एयरपोर्ट की फ़्लाइट बुक कराई, एंड दिल्ली से मैंने फ़्लाइट ली वहाँ की. एंड उसमें क्या हुआ कि फ़्लाइट के दौरान ही मेरे तकरीबन है अराउंड मैं 5 से 10 मिनट पहले ही एरोप्लेन में अंदर पहुंचा, एंड मेरा जो दिल था वो तेज़ से धड़क रहा था, क्योंकि ये था कि फ़्लाइट ना मेरी छूट जाए. मैं थोड़ा लेट चला था, इसलिए मुझे याद आ रहा है वो सीन. मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी उस टाइम, क्योंकि मैं बहुत सिर्फ एक एंड पॉइंट पे जाके ही वहाँ पे पहुँचा था फ़्लाइट में. एंड अगर वो फ़्लाइट कैंसिल हो जाती मेरी या छूट जाती, तो मुझे उसी टाइम एक अगेन फ़्लाइट करनी पड़ती, एंड वो मेरे तकरीबन अराउंड 15 to 16,000 की पड़ती, तो बहुत कॉस्टली पड़ती. तो वहाँ पे जाके मैं पहुँच गया सेफली. अराउंड 2.5 आवर्स की जर्नी थी. एंड देर आफ्टर व्हाट हैपन कि जो आपका गुवाहाटी का स्टेशन है उसके जो आपका 5 FSB है उसके सामने बड़ा एक आदिवासी टाइप सा इलाका है, झोपड़ियाँ बनी हुई है, तो वो आपको ना रोक लेते हैं वहाँ पे जो आदिवासी हैं. और उन्होंने भी मुझको रोक लिया था. मैं रैपिडो बुक करके गया था एक स्कूटी वाले के साथ, एंड जैसे स्कूटी में आगे जा रहे थे तो कुछ आदिवासी आई और मुझको घेर लिया. मैं डर गया कि यार ये क्या हो रहा है, और मेरे साथ मेरे डॉक्यूमेंट्स भी है, कहीं छीन ना ले. तो एक्चुअली होता क्या है कि वो ऐसा नहीं होता, वो रूम स्टे के लिए आपको कांटेक्ट करना चाहते थे उस टाइम, और उन्होंने रूम स्टे बनाए हुए थे झोपड़ियों के अंदर ही. तो इसलिए उन्होंने घेरा था, कि उनको पता था कि बच्चे इंटरव्यू देने आते हैं. सूटकेस जैसे मेरा देखा था, तो उनको लगा कि हाँ ये भी इंटरव्यू देने आया, तो इसको यहाँ पे ऐसे रोक लेते हैं.
तो वहाँ पे जैसे ही उन्होंने मुझे रोका, मैं डर रहा था कि यार ये कोई चोर चार और मेरे कपड़े कुपड़े डॉक्यूमेंट्स ना मेरे से छीन ले। लेकिन वहाँ पे ना कुछ और बच्चे रुके थे जिनका मेरे साथ ही कल इंटरव्यू था। तो वो उनके साथ जैसे ही मैंने उनको देखा और उनसे बात करी, तो आई फाउंड दैट दे आर ऑल्सो इन डी ए, लाइक हु हैज़ ऑल्सो कम फॉर दी सेम इंटरव्यू। एंड दैट वॉज वहाँ पे जिस पे मैं रुका था, जिस रूम के अंदर, वहाँ पे थे तीन कैंडिडेट्स में, एक पहले कॉन्फ्रेंस आउट था, एक पहले स्क्रीन आउट था, एक पहले प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट था, और मैं था जो कि एक कॉन्फ्रेंस आउट एक स्क्रीन आउट करके वहाँ पे आया हुआ था। तो हमारी एक बड़ी अच्छी मतलब वार्तालाप गई, एंड वी बिकम फ्रेंड्स देयर, एंड इट वाज सो नाइस लाइक टाइम दैट वर स्पेंड ऑन दैट डे। और उस नाइट हमने बड़ा डिस्कस किया कि भाई ऐसे ऐसे हम तैयार होंगे, एंड हमने अपनी एक दूसरे की जर्नी शेयर करी, एंड इट वाज सच अ नाइस मीटिंग विद देम दैट आई लव्ड एंजॉयड विद देम। एंड फिर वहीं झोपड़ी पे हमने मतलब कि रात को खाना खाया, केले के पत्ते के ऊपर इतने सारे चावल दिए हुए थे और साथ में दाल दी हुई थी। तो वो हमने ठूसी, भाई कैसे भी कि खाना तो खाना ही था। एंड देर आफ्टर व्हाट हैपन कि हम सुबह फिर 4 बजे उठे, 4 बजे उठ के हम सारे रेडी हो गए, एंड अराउंड 5 साढ़े 5 बजे हम निकल गए झोपड़ी से। अराउंड 800 700 800 मीटर की दूरी पे हमारा सेंटर था, तो वहाँ पे गए हम पैदल। एंड देर आफ्टर पैदल पहुँचने के पास वहाँ पे गुवाहाटी सेंटर है, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग कम होती है, तो हमारी रिपोर्टिंग थी अराउंड 38 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग थी। एंड वही हम ड्रेस ड्रोस टाई टू पहन के पूरे लाइक अराउंड जेंटलमैन कैडेट बन के हम पहुँचे वहाँ पे गेट के ऊपर। 5 फीट सिलेक्शन बोर्ड नया सेंटर खुला है, एंड मतलब कुछ ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं है, ठीक ठाक एरिया में है, एंड इट्स नीट एंड क्लीन एज कैंट्स आर। एंड देर आफ्टर व्हेन वी रीच देयर आई वॉज लाइक लिटल बिट नर्वस ऑल्सो, बिकॉज दिस अटेम्प्ट कैन कॉस्ट माई लाइफ, बिकॉज लाइफ कैन चेंज इफ आई कैन गेट रिकमेंडेड। Yes, different life path can also be followed if I not get recommended. So both things were there were possibility for the both the things, and I was prepared for both of them. Now what happened कि हमारी जो स्क्रीनिंग थी, स्क्रीनिंग से पहले हमको वहाँ पे ब्रेकफास्ट कराया गया। ब्रेकफास्ट में वही एग सैंडविच एंड एक शायद उपमा था एंड चाय थी। एंड उसके बाद हमको स्क्रीनिंग हॉल में लेके जाया गया, वहाँ पे हमारे सबसे पहले OIR टेस्ट थे। अब यहाँ पे एक होती है, जैसे कहते हैं ना कि ये जो SSB जर्नी होती है बड़ी अच्छी होती है, वहाँ पे SSB जर्नी में मेरा एक फ्रेंड था जो जहाँ से मैं देहरादून से स्क्रीन आउट हुआ था, उसी टाइम वो मेरे ग्रुप में था। एंड देर आफ्टर वो गुवाहाटी भी उसी डेट में वही मेरे साथ आ गया वहाँ पे। तो हमारी फ्रेंडशिप वहीं से बन गई और हमने एक दूसरे को पहचान लिया कि हाँ भाई ये तो वही है जो मेरे साथ देहरादून मिला था। तो बाद में जाके वो मेरे साथ सेम ग्रुप में भी था अंदर, जब हम दोनों स्क्रीनिंग हुए। एंड देर आफ्टर भाई व्हाट हैपेंड कि OIR test हुआ, and in OIR it was so difficult. By go if anybody is going to Guwahati, then remember that the OIR has been changed totally at the Guwahati center, and it is not like ये जो इंटरनेट पे वायरल हुआ है वो नहीं है, वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो OIR भाई जैसे हमने दिया, वी वर लाइक कम्प्लीटली शॉर्ट कि ये एक्चुअली आ क्या चुका है, क्योंकि हम तो वही जो इंटरनेट पे वायरल हुई है चीज़, वो जो PDF है वही करके जाते थे, लेकिन वहाँ पे कम्प्लीटली वो चेंज हो चुका था, एंड वी वर कम्प्लीटली शॉक्ड बाय देयर। एंड देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड कि भाई अब उसके बाद हमको एक वॉशरूम का ब्रेक दिया, तो वॉशरूम में जाके हमको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, क्योंकि जिस किसी से भी पूछा हमको यही लगा कि सबको बहुत मुश्किल OIR लगा था, एंड सबकी मतलब फटी पड़ी थी। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि सिर्फ हमारी ऐसी हुई हुई थी। अब जब हमारी मतलब कि वो होती रहती है और दूसरों की भी मतलब ऐसी ही सेम हालत होती तो एक थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि मैं डिफरेंट हूँ, सबके साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसे ही हमारा वहाँ पे कुछ केस था कि OIR सबको मुश्किल लग रहा था, सब कह रहे थे कि भाई हम तो गए, हम तो स्क्रीन आउट हो रहा है, ये बात थी। फिर आई पिक्चर बिल्कुल ब्लर थी। हमको मैंने जो ऑब्जर्व किया कि उसमें एक लेडी थी जिसके हाथ में पर्स था, एक और आदमी था। तो ऐसे मैंने पिक्चर देखी, हमको हॉल में थी, तो मैंने स्टोरी ये बनाई कि भाई वो ना मतलब जैसे हम ईस्ट साइड आए हुए थे गुवाहाटी, तो मैंने बना दिया कि कुछ नॉर्थ के जो बच्चे हैं वो ईस्ट साइड आए हुए हैं, एंड वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं यहाँ के नई वेजिटेशन की, नई पीपल्स की, नए कल्चर ट्रेडिशन के बारे में डॉक्यूमेंट्री करके ऑनलाइन यूट्यूब पे ऐसे शेयर कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ी अपने से रिलेट करके बना दी पिक्चर, एंड लाइक इट वाज पॉजिटिव पिक्चर। एंड अब उसके बाद होता है हमारा हमको उसमें लेके जाया जाता है अलग सेपरेट रूम में, जहाँ पे देर आफ्टर इट इज़ गोइंग टू हैव दी ग्रुप डिस्कशन इन द नरेशन। अब नरेशन पार्ट में नाउ डेज मैंने 4 SSB इंटरव्यू दिया है। व्हाट आई हैव रियलाइज सो फार इज़ दैट कि भाई नरेशन कैंडिडेट्स का बड़ा स्मूथ जा रहा है, हर किसी कैंडिडेट का नरेशन स्मूथ होता है। तो इफ़ यू आर लैकिंग इन नरेशन भाई, तो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, प्लीज़ इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन। कैंडिडेट्स का नरेशन स्मूथ होता है भाई, हर टाइम ऐसा कुछ नहीं है। तो नरेशन जैसे
ऐसे स्टार्ट हुआ तो जैसे धीरे धीरे एक एक करके आ रहा था, मतलब कि चेस्ट नंबर 9, फिर 10, फिर 11, मेरा शायद 12 था। तो जैसे ही 11 की बारी आई तो भाई एक हार्ट बीट तेज हो जाती है जेन्युइन यार, कि अब मुझे बोलना है तो हार्ट बीट तेज ही हो ही जाएगी। तो मेरी भी हो गई। और जैसे ही मेरे पे आया तो मैंने नरेशन अच्छा खासा दिया, एंड मतलब आई कांटेक्ट में ऐसे मेरे कोई खास दिक्कत नहीं होती, नरेशन मेरा ठीक गया। मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, मॉडरेट से अबव ही मेरा नरेशन रहता है हमेशा। मैंने ना ज़्यादा तेज़ बोलता ना ही ज़्यादा स्लो, सो इन मॉडरेटली आई गिवन माई नरेशन फ्लुएंटली एंड आई नरेटेड माई स्टोरी। देर आफ्टर ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन में भाई मैंने जो देहरादून रियलाइज़ किया था कि भाई ग्रुप डिस्कशन एक्चुअली 2-3 मिनट का होता है। तो भाई मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आपको ग्रुप डिस्कशन में आप ग्रुप डिस्कशन बोल रहे हो स्क्रीनिंग का, तो भाई बोलते रहो, अपना पॉइंट दो, थोड़ा सा डोमिनेटिंग साइड चले जाओ, क्योंकि भाई 2-3 मिनट में अगर जीटो ने आपको नहीं देखा ना, आपकी प्रेजेंस नहीं देखी, तो वो नहीं मतलब पास करेगा भाई। तो मैंने तो सोच रखा था कि भाई मैं हल्का सा डोमिनेट करूँगा, मैं बोलूँगा, और मैं मतलब कि थोड़ा इतना बोलूँगा कि हाँ लाइक जी टी ओ फेल्ट डैट येस आई एम इन द ग्रुप। मेरा ये अप्रोच था भाई स्क्रीनिंग के अंदर। मैं थोड़ा डोमिनेटिंग साइड गया था जानबूझकर, क्योंकि मुझको स्क्रीनिंग हो रहा था यार, आई हैव कम फ्रॉम हरियाणा टू गुवाहाटी एंड इफ आई गेट स्क्रीन आउट देन इट्स नॉट गोइंग टू बी ओवरकमिंग माई, समझ रहे हो ना, कि आई वॉज डेस्परेट टू गेट स्क्रीन इन दैट। आई एम सेइंग भाई मैंने जी टी ग्रुप डिस्कशन स्क्रीनिंग में थोड़ा डोमिनेटिंग किया था, बिकॉज आई वॉन्ट दैट, आई वॉन्ट टू गेट स्क्रीन इन। एंड देर आफ्टर फिर भाई हमारा ग्रुप डिस्कशन वही भसड़, क्योंकि भाई एक तो हमारा रिपीटर का ग्रुप है, एंड देर आफ्टर तो भाई भसड़ तो होगी जेनवन। बाद में जब उसके बाद हमको क्या बोलते हैं लंच के लिए दोबारा से मैस में लेके जाएगा, एंड लंच के टाइम भाई हम सारे मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे दूर के ही आए हुए थे, तो सब थोड़ा मतलब भाई डेस्परेट थे, एंड एवरीबडी वाज लाइक लिटिल बिट नर्वस ऑल्सो, बिकॉज यार दिस टाइम द स्क्रीनिंग वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड मैं भी थोड़ा भाई डेस्परेट था, नर्वस था, एंड आई वॉज लाइक यार प्लीज़ आई वॉन्ट टू गेट स्क्रीन इन बिकॉज आई हैव कम टू फार, एंड अगर पहले दिन आउट हो गए तो यार इट विल बी फीलिंग वेरी मच बैड, एंड इट वॉज नॉट अप टू डैट थिंग कि यार मैं स्क्रीन आउट हो गया। तो अब धीरे धीरे भाई हमको दोबारा से हॉल में लेके जाया गया जहाँ पे हमारा ओ आई आर हुआ था। एंड उसके थोड़ी देर बाद आता है भाई मतलब कि मेरा जो दोस्त था जो देहरादून भी मिला था और मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, शिवम उसका नाम था, वो मेरे से बार बार एक ही बात कर रहा था कि जो तेरे माइंड में सबसे पहली चीज़ आ रही है ना कि तू स्क्रीन इन होगा या नहीं होगा, वही तू मतलब वही रिजल्ट होगा। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मेरा नरेशन भी बड़ा अच्छा है यार, मेरा ग्रुप डिस्कशन भी अच्छा गया, स्टोरी भी मेरी पॉजिटिव रही है, तो मैं स्क्रीन इन हो जाऊँगा। तो ऐसे रिजल्ट अनाउंस हुआ तो भाई मैं हो गया स्क्रीन इन, वो भी स्क्रीन इन हो गया, और हमारे साथ पाजी स्क्रीन इन हो गया, बहुत हमारे कैंडिडेट स्क्रीन इन हुए। हम स्क्रीन इन हुए 24 आउट ऑफ 38। तो ये हमारा स्क्रीनिंग का रेशो था गुवाहाटी, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी मच हैप्पी यार। मतलब मैं अपनी हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहा था उस टाइम, क्योंकि फॉर मी गेटिंग स्क्रीनिंग ऑल्सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग यार। क्योंकि वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि स्क्रीन आउट जितने भी कैंडिडेट्स हुए ना, उन्होंने पिक्चर नेगेटिव बनाई थी भाई। ग्रुप डिस्कशन वाइज नरेशन वाइज लगभग सारे इक्वली मिलेंगे आपको। जो डिफरेंस क्रिएट करेगा वो एक तो ओ करेगा, एज वेल एज जो साइक पिक्चर करेगी, क्योंकि साइक पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी वो समझ लो वही 33% उसका रेशियो है। तो ये अगर सारे कैंडिडेट्स का नरेशन तो अच्छा ही था, जो कि इंटरिंग ऑफिसर चेक करता है स्क्रीनिंग में, ग्रुप डिस्कशन जीटो चेक करता है, साइकोलॉजिस्ट आपकी पिक्चर चेक करता है, तो वो आपको ध्यान में रखनी है कि पिक्चर आपको पॉजिटिव साइड ही लेके जानी है। एंड उसके बाद हम भाई भी स्क्रीनिंग हो गए, बड़ा रिलैक्स फील हुआ। उसके बाद थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन हुई, सारे इंटरिंग ऑफिसर जितने भी वहाँ पे ऑफिसर होते हैं उस बोर्ड के, वो सारे आके बैठ जाते हैं, एंड मतलब वो क्या करते हैं कि दे ओ लाइक नाउ डू दी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर एंड वेरिफिकेशन ऑफ योर 12th मार्कशीट एंड रोल नंबर, जो उनकी मतलब एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन होती है। देर आफ्टर हमको रूम अलॉट कर दिए। हमारे रूम का नाम था ध्रुव। ध्रुव इज़ अ हेलीकॉप्टर, एंड उसमें हम थे चेस्ट नंबर 9 to 16, एंड चेस्ट नंबर 9 प्रेम, चेस्ट नंबर 10 मी, चेस्ट नंबर 11 था रशान, चेस्ट नंबर 12 शिवम, चेस्ट नंबर 13 साहिब, चेस्ट नंबर 14 आपका दिशांत, एंड चेस्ट नंबर 15 आपका था आपका एक चेस्ट नंबर 16 तो उद्धव था, एंड एक चेस्ट नंबर 15 भी था। तो भाई मुझे अपने ग्रुप के बंदों के नाम भी याद हैं, कईयों को तो ग्रुप के बंदे नाम भी नहीं याद होते 5 दिन में जाके। तो यही तो एक आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी होती है। ओ एल क्यू भाई कोई रटने की चीज़ नहीं है। आपको जो आपके ग्रुप मेंबर होते हैं उसके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बना के रखना है, एंड यू हैव टू बी अ गुड मेंबर बाय हार्ट हु थिंक्स अबाउट एवरीबडी नॉट ओनली ऑफ मी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई यू हैव टू बी अ जेन्युइन पर्सन हु इंटरेक्ट विद पीपल एंड हु नो वांट टू नो अबाउट देम। सो मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है कि नए नए दोस्त बनाना। तो मेरे तो सारे दोस्त बन गए थे, अभी बहुत दोस्तों के कंटेक्ट्स हैं,
यार आई फील गुड यार, मतलब इट्स सो हैप्पी। दोस्त तो बनाने ही चाहिए यार। तो ये हो गया। तो अब रात का तो हमको इंस्ट्रक्शन मिली थी कि हमको 6 बजे रिपोर्ट करना है साइकोलॉजी टेस्ट के लिए। साइकोलॉजी टेस्ट बड़ा एक मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी साइकोलॉजी टेस्ट की, एक 157 की पीडीएफ, टैट ओल्ड टैट कंबाइंड नाम की एक पीडीएफ बड़ी वायरल है इस पे ऑनलाइन, वो मैं सारी कर गया था। एंड वैट वर्ड्स भाई मैं अराउंड 1500 to 2000 वैट वर्ड्स करके गया था भाई, प्रैक्टिस बड़े अच्छे वाले प्रैक्टिस। एक तो आपका टारगेट एसएसबी ऐप आता है, एक एल की जो बुक्स हैं, एल की जो बुक्स है ना, ये पिक्चर वाली, ये भी जो साइकोलॉजी की पिक्चर की बुक उन्होंने बनाई हुई है, मैं सारी पिक्चर प्रैक्टिस कर गया था। एंड वैट वर्ड्स तो साइक की पिक्चर प्रैक्टिस मैंने बहुत ज़्यादा की थी। एसआरटी तो नॉर्मल होते हैं, वो तो हो ही जाते हैं। एंड देर आफ्टर सेल्फ डिस्कशन में क्या ही प्रैक्टिस करना, उसमें तो आपको बड़ा अपना नेचुरल लिखना है। तो टैट की पिक्चर तो भाई मैंने ऐसे कर ली थी। एंड फिर साइकोलॉजी टेस्ट स्टार्ट हुआ। जो आपके साइक के इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम तो रिपीटर थे, हमको पता ही था क्या करना है। 11 पिक्चर, फिर एक ब्लैंक आएगी, फिर 60 वैट के वर्ड्स। एंड फिर आपके 60 ही आते हैं, नहीं शायद, हाँ 60 है, 60 ही आते हैं, 60 आपके वैट आते हैं। सेल्फ डिस्कशन टैट भाई मैंने सारी अटैम्प्ट की अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया स्टोरी बनाई। आपकी बात प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। टारगेट एसएसबी एलडब्ल्यूएस की वो ऑनलाइन जो पिक्चर है 400 की पीडीएफ सारी पिक्चर करके गया था, तो आइडिया भी बड़े अच्छे बन रहे थे। एंड टैट की पिक्चर बड़ी पॉजिटिव, सारे सॉल्यूशन, सारे एक्शंस एंड गुड एक थीम। एंड जनरली अब की बार टैट की पिक्चर जब मैंने अपना 2012 पिक्चर का क्लोज किया, तो आई वॉज वेरी वेल सेटिस्फाइड कि येस दिस टाइम आई हैव डन वेरी गुड इन दिस साइकोलॉजी पार्ट। देर आफ्टर वैट वर्ड आए, वैट के वर्ड भाई जैसे वर्ड आया मेरा सेंटेंस तैयार था। इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी थी मैंने कि यार 2000 वर्ड्स मेरे दिमाग में छपे हुए थे। डेथ है तो डेथ इंस्पायर पर्पसफुल लिविंग, ये मेरा सेंटेंस था डेथ वर्ड का। तो इतने अच्छे अच्छे सेंटेंस में बना के गया था। 2000 वर्ड मेरे दिमाग में छपे हुए थे, इतनी अच्छी प्रैक्टिस की थी। तो वर्ड आया, सारा सेंटेंस बढ़िया एकदम। दूसरा वर्ड आया, सारा सेंटेंस एकदम बढ़िया। तो ऐसे वही मेरे प्रैक्टिस करी। और जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं इंटरव्यू में। मेरे को एसएसबी इंटरव्यू में 445 मार्क्स मिले हैं। जितने भी हम 8 बच्चे रिकमेंड हुए थे बाद में, 8 में से सबसे ज़्यादा एसएसबी इंटरव्यू में मार्क्स मेरे ही हैं, समझ रहे हो। तो मैंने प्रैक्टिस भाई बहुत बहुत की थी दबा के साइकोलॉजी की। तो जैसे ही साइकोलॉजी टेस्ट पूरा हुआ, एसआरटी में मैंने जो भी उन्होंने सिचुएशन दी थी, अगली एक लाइन में सोल्यूशन दी थी। सेल्फ डिस्क्रिप्शन नेचुरली जो मैं था, मैं सारा लिखे आया था। ये मेरा साइकोलॉजी का ओवरव्यू था। तो मतलब कि साइकोलॉजी आई प्रैक्टिस वेरी मच। एंड वैट वर्ड एंड एसआरटीज एंड टैट पिक्चर सेल्फ डिस्क्रिप्शन, इट वॉज लाइक व्हेन आई completed my psychology test, I was like yes, I have written something that is very much good and that is up to the mark this time, and I was feeling satisfied. कोई भी टेस्ट करने के बाद अगर आपके अंदर के मन से एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ रही है ना, तो इट मीन्स दैट यू हैव क्रैक्ड दैट टेस्ट। यस, अगर आपको टेस्ट या इंटरव्यू देने के बाद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन की फीलिंग आ रही है, तो ये कि मैंने यार अच्छा किया, सारी चीज़ अच्छे गया है, एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है अंदर से, इट मीन्स येस यू आर गेटिंग रिकमेंडेड इन दैट टाइम। जो सारे टेस्ट वोस्ट करके रात को एक बड़ी सेटिस्फेक्शन फीलिंग आ रही थी कि भाई मैं स्क्रीनिंग भी हो गया एंड देर आफ्टर साइकोलॉजी टेस्ट भी हो गया। तो आई वॉज वेरी मच हैप्पी कि यार साइकोलॉजी चाहे एकदम मस्त गया है एंड स्क्रीनिंग हो गया। सो आई वॉज वेरी मच हैप्पी, वेरी मच लाइक लाइवलीनेस वॉज कमिंग आउट फ्रॉम मी। एंड वही हम अपने रात दोस्तों के साथ पूरे मज़े कर रहे थे। हमने बहुत मज़े किए भाई, बहुत ज़्यादा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डे 2-3 का एक्सपीरियंस एंड फिर बनाऊंगा डे 4 एंड 5 का। तो यू हैव टू रिमेन ऑन दिस चैनल। एंड मज़े बहुत किए हैं। एंड अभी तो इंटरव्यू, जीटी और कॉन्फ्रेंस की बारी भी है, तो आप आने वाले पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। एंड there are only few videos that I am going to upload on this channel. One will be of the joining letter and one will be on the daily routine, one will be on the GTO hike and this conference. So ये था भाई मेरा डे 1 का एक्सपीरियंस एट दी 5FSB गुवाहाटी। एंड अभी डे 2, 3, 4, 5 की भी वीडियो आएगी। सो यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर द फर्दर अपडेट्स एंड यू हैव टू ड्रॉप अ पॉजिटिव कमेंट। एंड इफ़ यू वांट कैन सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, बिकॉज 1 महीने के बाद तो अब सीधा मैं जो वीडियो बनाऊँगा वो बनाऊँगा 20-25 साल बाद रिटायरमेंट के बाद बनाऊँगा इसी चैनल पर। यूट्यूब तो ज़रूर स्टार्ट करूँगा मैं फिर भी। तो this was my experience and thank you, Jai Hind, and stay good, stay hard, stay motivated.